जाज कराम को वैक्सीनेशन की जो जरूरत है उसके ताल्लुक से अहम बताएं। She will do that. So, good morning to all of you. I think Hindi and English चलेगा ना? हिंदी ही चलेगा, okay, ठीक. So थोड़ा सा हिंदी आई एम नॉट सो फ्लुएंट बट चलेगा ना, ओके. सो ये हज कॉन्क्लेव रिसेंटली नवंबर में हुआ था. उस समय हमारा मिनिस्टर की रिप्रेजेंटेटिव टीम में मैं था. हेल्थ का बहुत सारा चेंजेस इस साल है पिछले साल से. सो उसी के बारे में आप लोगों को हमको बताना है दैट इस बार कुछ डिजीजेस वो हमारा नेक्स्ट प्रेजेंटेशन उसी के बारे में है. सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हेल्प के लिए. एंड यू नो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया वो बहुत स्ट्रिक्ट है ना कोई भी चीज में. सो वो लोग नो विल बी वेरी स्ट्रिक्ट दिस ईयर बिकॉज मतलब वो पीपल दोज हु आर सिक देयर आर 6 कंडीशंस वो डॉक्टर नवीन वर्मा बताएंगे. सो आप लोग फील्ड में थोड़ा सा अभी हेल्प करना है. कोई भी फैमिलीज वो वाला डिजीज के साथ ऑलरेडी पिलग्रिम्स है, आप अभी से उसको रेडी करना है क्योंकि अभी इस बार हेल्थ कैंप्स भी स्ट्रिक्ट रहेगा. और अदरवाइज कोई भी सिक पिलग्रिम्स है वो आप उनका चांस दूसरा वेटिंग लिस्ट को मिलेगा. सो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी रिक्वेस्ट है क्योंकि क्या है वो लोग क्या बोला है एयरपोर्ट में रैंडमली स्क्रीन करेंगे और कोई भी बहुत सिक है वो कैटेगरीज में आ जाएंगे, उसको अंदर नो अलाउ नहीं करेंगे, डिपोर्ट करेंगे. और उसके अलावा इंडियन पिलग्रिम्स के ऊपर कोटा भी कम कर सकते हैं. और इंडियन नो सीजीआई है और इंडियन मिशन को फाइन भी करेंगे. so, ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टली वो बोल रहे हैं. सो वी शुड बी वेरी नो आई नो आप सब लोग नो हज पिलग्रिमेज करना चाहते हैं बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है. आप फील्ड में जाएंगे तो आपको तो पता है रियली कोई भी सिक है तो आपको तो मालूम है. सो वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है. यही इसके बाद ये वैक्सीनेशन के बारे में मेरा कोलीग है डॉक्टर दिव्या, वो छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे. थोड़ा सा चेंजेस है लास्ट ईयर का, आप जस्ट ये शॉर्ट प्रेजेंटेशन है. फिर बाद में हम नो व्हेन मेडिकल के बारे में है भी है तो तभी भी हम थोड़ा सा आपको समझा देंगे. डॉक्टर. Good morning, everyone. Thank you, sir. So, I'll be giving a brief on the requirement of vaccination for Hajj pilgrims. So, there are mandatory vaccination and recommended vaccination as per the Kingdom of Saudi Arabia guidelines. So, mandatory is the QMMV, quadrivalent meningococcal meningitis vaccine, which is for all the pilgrims, and recommended vaccine is SIV, seasonal influenza vaccine. It is for targeted pilgrims and COVID-19 vaccination. PHIH division is procuring QMMV and SIV, and further it will be distributed to states and UTs through the GMSTs as per the allotted quotas of pilgrims. So mandatory vaccine, as I said, it is QMV, which is a polysaccharide vaccine, ACYW135, currently given in India. So this should be received by 10 days prior to the travel, and the validity is not earlier than 3 years of travel. So there is one more variant which is quadrivalent vaccine, which is not given in India, but still just want to say that it is not less than 10 days and not exceeds 5 years. So in vaccination certificate, the type of vaccine and the date of vaccination must be mentioned, and if the vaccine type is not indicated on the certificate, and it will be considered valid only for 3 years as per KSA guidelines. Next is the recommended vaccine, which is SIV, seasonal influenza vaccine. यही conditions हैं. It is recommended only for the targeted groups who are pregnant women, children under 5 years, elderly more than 65 years, individuals with chronic medical conditions, and individuals with immunosuppressive conditions. Next is the coronavirus, that is COVID-19 vaccine. ये भी target populations के लिए देना है. Age is over 65 years, pregnant women, chronic heart disease, chronic respiratory disease, chronic kidney failures, and hereditary blood disorders, congenital or drug-induced immunodeficiencies, and chronic neurological diseases.
इसमें प्रूफ ऑफ इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट कोविड-19, इसमें कोई एक चीज होना चाहिए, जरूरी है कि कंप्लीशन ऑफ बेसिक कोविड-19 वैक्सीनेशन, 2 or more doses administered during the year 2021 to 24, or a single dose of COVID-19 vaccine, which is updated for 2025 to 26 season, or the laboratory confirmed recovery from a COVID-19 infection during the year 2025. If someone is positive for COVID-19 vaccination, then laboratory confirmation should be there that they are COVID-19 negative. So these are the recommended vaccinations. And अभी एक change है कि oral poliomyelitis vaccine is not required in India because it doesn't come under endemic countries. As per KSA guidelines, they have released the latest poliovirus infected countries. So the countries with wild poliovirus, Afghanistan and Pakistan, and countries with vaccine-derived poliovirus, which is Mozambique, Democratic Republic of Congo, and countries with CVDPV3 variant is Guinea, and countries with CVDPV2 detections. So these are the names, the countries which are enlisted as per the KSA guidelines. So according to this, OPV is not required for Indian pilgrims. So these are about the vaccinations. Just wanted to tell a plan for state immunization officers, as that QMMB is under the batch testing and it will be procured before 15th Jan 2026. Yeah, so thank you all. I just तो इसमें 6 मेन बड़ी बड़ी बीमारियों का क्लियर मेंशन किया गया है सऊदी गाइडलाइंस में कि किन लोगों को अनफिट माना जाएगा। तो इसमें मेजर ऑर्गन फेलियर आता है, चाहे वो किडनी फेलियर हो जिसमें डायलिसिस की जरूरत होती है, चाहे कार्डियक फेलियर हो, चाहे पल्मोनरी लंग फेलियर हो, चाहे किसी भी तरह के लिवर से रिलेटेड बड़ी बीमारी हो। तो ये तो हो गई एक कैटेगरी, मेजर ऑर्गन फेलियर। दूसरी हो गई सिवियर न्यूरोलॉजिकल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर, मानसिक अलग अलग हो सकती हैं, स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, कोई कुछ बाइपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, उसके टेक्निकल टर्म्स में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिंपल मैं समझ सकता हूं जैसे शारीरिक बीमारी होती है वैसे मानसिक भी किसी किसी को जरूरत पड़ती है दवाइयों की, तो उनको मानसिक रूप से बीमार माना जाता है। तो उनके लिए भी वहां पर जाने के बाद अगर कुछ संतुलन बिगड़ेगा और वहां पर फिर वो बीमारी बढ़ेगी तो वो भी एक खतरा है, तो उसको भी इसमें रखा गया है सेकेंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे एडवांस्ड एज विथ डिमेंशिया, डिमेंशिया यानी भूलना। अब वो किस रास्ते से आए, किस रास्ते से जाना है, इतना तक नहीं याद रख पाएंगे। जैसे सर ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया, आपने देखा कितना मुझे खुद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि कौन से जगह पर टेंट है हमारा, वहां पर वापस ही नहीं पहुंच पा रहे हैं, अपने ग्रुप से बिछड़ गए तो अकेले समझ ही नहीं पा रहे कौन सा रोड कहाँ पे जाता है और हमारा कैंप कहाँ है, टेंट कहाँ है। तो ये भी अपने आप में एक, फिर उसको कौन ढूंढ करके लाएगा, कहां से कैसे ढूंढ के लाएंगे। तो इसलिए जो एडवांसिंग एज के साथ भूलने वाली एक बीमारी होती है, डिमेंशिया कहा जाता है उसको 3 नंबर पे रखा गया है। चौथे नंबर पे प्रेगनेंसी, जैसा हमने पहले भी उसके वहां पर जो 2 डिलीवरी हुई उसके संबंध में बताया कि प्रेगनेंसी इन द फाइनल ट्राइमेस्टर, मतलब फुल टर्म प्रेग्नेंट है ना। और अगर फुल टर्म प्रेग्नेंट नहीं भी है, कम है, तो उसमें भी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है उनको रखा गया है इस कैटेगरी में कि वो भी ना जाएं, उनकी सेहत को, उनके बच्चे की सेहत को खतरा मानते हुए। 5वें नंबर पे कम्युनिकेबल डिजीज, जो बीमारियां एक दूसरे को फैल सकती हैं और जो एक भीड़ में अगर और सब लोगों को बीमारियां फैलेंगी तो वो सबके लिए खतरा मानते हुए उसको भी इसमें 5वें नंबर पे रखा गया है। जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे आप सब जानते हैं कॉमन, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी, इसको रखा गया है, या और भी किसी भी तरह की कम्युनिकेबल डिजीज, जॉन्डिस भी कुछ तरह के होते हैं जो एक दूसरे को फैलते हैं। तो इस तरह की कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज है तो 5वें नंबर पे उसको रखा गया है, वो भी अनफिट माना जाएगा। और लास्ट रखा गया है एक्टिव कैंसर पेशेंट्स। तो कैंसर भी आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़ता जा रहा है और कम उम्र में भी बहुत से लोगों को जांच करने पर पता चल रहा है कि कैंसर की बीमारी है। तो कोई भी एडवांस्ड एक्टिव कैंसर पेशेंट जिनका कीमोथेरेपी चल रहा है या किसी भी तरह का
इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट चल रहा है तो उनको भी अनफिट माना गया। तो ये 6 कैटेगरीज बिल्कुल क्लियर इसमें मेंशन की गई हैं कि कहीं भी इस तरह की कोई बात है तो उसको अनफिट मानते हुए ना मेडिकल सर्टिफिकेट दिया जाए, ना उनको वैक्सीनेशन दिया जाए और उनको आगे जाने से रोका जाए। जब तक वो इस तरह की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हो जाती, वो फिर अगले साल जाना चाहे तो अलग बात है, बट ये 6 बीमारियों को बहुत स्ट्रिक्टली हमें देखना होगा। और इसके लिए जो